Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to lecture number 10 of CSC 291 Software Engineering 1. In today's lecture, we will have a formal introduction of use case diagrams. We will see how in UML we can make these use case diagrams and how they link with in fact, in the previous lectures we have slight introduction of different kind of diagrams. We discussed use case diagrams, we discussed sequence diagrams, we discussed all different kinds of diagrams. From today we will start covering these diagrams in detail, and we will see that how we can use UML to make these diagrams, and what are the different notations or what are the different elements involved in these diagrams. But before we begin today's lecture, let's have a quick recap of our last lecture. In fact, it's a recap of our previous topic, because in the last lecture we finished the topic on requirement engineering. And if you guys remember that requirement engineering was a very detailed topic, and in fact it took us, I think, 4 lectures to actually complete this topic on requirement engineering. And within requirement engineering we basically covered all different kinds of models as well. So let's have a quick recap and see what we have covered in requirement engineering. Starting off with inception, we saw that at the inception phase, what we do, we basically ask certain set of questions, and the purpose at inception stage is that we want to know the customer, and we want to know the goals, why he wants the product to be made, and we want to identify the key stakeholders. I mean, there are basically, as I said in the previous lectures as well, that when you go to a customer site, a lot of people will have their own opinions, but there will be very few people whose opinions would actually matter. So you need to identify those people, and because those are the personnel who will tell you what are the key requirements or what are the things that they want in the software or the product that you are going to make. Second set of questions in the inception, they were more process oriented or more product oriented, where you used to where somebody or a requirement engineer is supposed to ask questions related to certain processes. An example that we discussed, for example, if you are making a human resource management solution, then when you go to the HR department, in the second set of questions you will be asking very key questions. For example, what is your hiring process, or how many leaves you have in a year, or what is your policy if an employee comes late, these kind of questions. And finally, the third set of questions, they include the questions which basically gauge how correctly you have asked the questions in the first 2 sets. So basically, and then you ask the customer, if there is something that you want to add but I have already asked you, then please do so. So we can say that inception consists of set of questions. Okay, and the second stage was elicitation. Elicitation, the word meaning of elicitation is to ask someone, or to get some information from someone actually. So in the elicitation phase, we saw that we covered 2 kinds of methods. Number 1 was collaborative requirement gathering, and another was quality function deployment. And we saw that, and when we were discussing elicitation, I told you that this is one of the most difficult tasks, because to get information and to get the right information from somebody is very difficult, and to get some quantitative information, that is actually more difficult. So because as I said, that if requirements are qualitative, then it's very hard to gauge them. But whereas if you specify something in certain quantity, then it's very easy to gauge, because then you have to meet that quantity, whereas quality is different for different people. So eliciting requirement is one of the most challenging tasks, and we discussed that there are basically 2 methods that we covered in it. Number 1 was collaborative requirement gathering, and the second one was QFD. And just a quick review of what collaborative requirement gathering was. Basically, you sit in a group of people, and the group includes people from your company, people from customer side, and then you basically start discussing the product, and then you have a medium where you basically keep on recording all the things that different people come up with. And in QFD, what we used to do is basically we used to map the customer wishes with the technical requirements, and then we used to compare our product with the competitors based on the customer wishes and on the technical requirements, and then we used to come up with certain
quantities for technical requirements. For example, if we are designing a pen, then we can say कि pen का diameter कितना होना चाहिए, pen की length कितनी होनी चाहिए, pen की ink कितनी देर चलनी चाहिए. You know, we can come up with these quantities in the end. So those were the two methods that we discussed when we were discussing elicitation. The third thing in requirement engineering, or third phase of the requirement engineering process is elaboration. Elaboration means that to elaborate on something that you have already got. So for example, in inception and elicitation, we have gathered some requirements, and in the elaboration phase we start partitioning our system, and we saw that to partition our system there are different kind of models that we can use. So, and basically we covered 4 different kinds of models. There was behavioral modeling, there was flow oriented modeling, there was class modeling, and there was scenario based modeling. So they were in the elaboration, there were basically 4 kind of modeling that we discussed. Number 1 was scenario, then flow oriented modeling, then class modeling, and behavioral modeling. So in scenario modeling we discussed use cases, we discussed activity diagrams, and in the flow based modeling we discussed DFDs, we discussed CFDs and processing narratives. In the class diagrams we discussed how to identify classes, how to identify their attributes and their operations, and then we also discussed CRC modeling in very briefly. And similarly in the behavioral modeling we discussed sequence diagrams and state diagrams. And as I said, when we are doing, or when going through these lectures, especially in the elaboration phase, that we will have separate lectures on these diagrams, because these diagrams, by the end of this course, your goal should be that you should know that when to make which diagram and how to make a diagram exactly. So as I have already introduced, that today's lecture is on use case diagrams. We will do some examples, we'll see the notation of use cases, and let's wait and see what's coming ahead in the lecture. After the elaboration phase, we looked at the negotiation phase, and in the negotiation phase I told you that first of all, before you go and negotiate with the customer, you need to have understanding of the requirement. Okay, because if you do not analyze each and every requirement, then you will not be in a position to negotiate with the customer. And first of all, you need to identify what you have to negotiate. Okay, so negotiation के अंदर हम पहले क्या करते थे, requirements को rank करते हैं, requirements को, हर एक requirement को effort और resource, we basically do an estimate about each requirement. एक requirement को करने के लिए हमें कितने resources चाहिए, कितना time लगेगा, and then we are in a position that when we go to the customer से कहते हैं कि जी the time constraint that you have set, for example, we cannot achieve all these things within those time constraints. So basically we have to analyze requirements and then we go and negotiate with the customer. And second thing that we discussed during negotiation, that negotiation is an art, and you need to have a proper strategy when you go and meet the customer, and you need to realize that negotiation is not a competition, okay? Because in the end the customer is the one who will actually pay you. So you need to create a win-win situation for yourself and for the customer. Following the negotiation, the next phase is specification, and this work product of specification is SRS, which is called Software Requirement Specification Document. And because we have gone through 4 different phases before reaching specification, and now we have enough material to actually start writing it down. So specification says that when you have gathered requirements, then you write the requirements in the textual format as well, and in the diagrams that you have already made. And we saw that how IEEE has defined a standard that what are the things that should be included in an SRS diagram. And we also discussed that requirements not only includes the functional requirements, for example the functionality certain products should provide, it also includes the non-functional requirements, and it can also include infrastructure requirements. For example, if you are providing hardware with the software, then that is also included. If you are providing communication infrastructure, then that is also included. So specification is a detailed document which basically lays a foundation, or which acts as a foundation for the software or the product that you are going to make. Then comes validation. Validation is one of the most important phases, because it is basically an agreement between you and the customer, because when customer validates the set of requirements that you have written, then customer agrees and you agree on that document. So when the time of delivery comes, when you have to deliver the product to the customer, then that document which has been validated, which was validated by the customer, will be used as a qualitative. My customer कहेगा कि जी ये मैंने validate किया था, I will test my product against what I validated. And finally, the final stage is requirement management. In requirement management,
we discussed one very interesting technique which we call requirement traceability. And we saw how requirement traceability, first of all, why do we need to manage requirements? Requirements is one of the most common source of changes or delays in any product or in any project. So we need to manage requirements. And what do we mean by manage requirement? For example, a customer comes in and he says, I want to change this and this requirement. And if you're not managing requirement properly, then you will say, okay, gee, we will change them. Okay, but this is a very, very bad decision, because you have not actually analyzed that what will be the impact of the changes that you have just accepted. So requirement management says that whenever there is a change or whenever you plan of changing something, you need to properly analyze it, that if I change this thing, what will be its impact on the other requirements, or what will be the impact on the overall product. So by making structures like requirement traceability matrices or requirement traceability tables, you can actually trace a change in a requirement to the other product or to the other elements of your software. So this is very important. So we had a very detailed topic, requirement engineering, that we covered until the last lecture. And now moving on to today's lecture, as I already introduced, we will be covering use case diagrams. And what I have in store for you is, so outline for today's lecture is, we will have formal introduction of use cases. I have already introduced, we already have a brief introduction about use cases. Then we will look at the UML notations and what are the elements involved in the use cases, and then we'll try and do a couple of examples so that you guys get an understanding about use cases. But I must say that these examples, they would not be enough. You guys should come up with the examples, more examples, look at different products that you're already using, and just try to analyze that how you interact with the system, and try to make use case diagrams so that you get proper understanding of use cases. Okay. So what is a use case? A use case diagram presents interaction between the system and the other systems, or with the system users, who are called actors. As we have already defined, it records interaction between the user, between an actor and the system or the product that you're making. And what is the definition of an actor? An actor can be human, an actor can be a machine, or an actor can be another software. Similar, actor represents roles which may include human users, external hardware, or other systems. We have already done that. It describes who will use the system and the ways in which a user interact with the system to achieve a certain goal. So whenever, for example, you log into your email account, okay, now the purpose of your interaction is that you want to read an email or you want to send an email. So a use case would first of all record that you are interacting with your system. So it has basically recorded an actor, and then it will record that what functions you will perform to actually achieve the goal that you're trying to do. So for example, the first thing that you will do, you will authenticate using your login and password, okay, and then maybe you will go into the inbox, and then maybe you will compose a message, or if you're reading, you will just read the message. So you basically record first of all an actor and what goal he is trying to achieve, and what interactions it will do with the software, or the actor will do with the software to achieve that particular goal. And usually a use case diagram is accompanied with a text, जिसको हम कहते हैं use case text. Okay, so the text actually is just the description of what you make in a diagram. Okay, but it is always useful to write the text, because at times you can miss things, and we saw that use case text is also useful when you are making class diagrams. Okay, so what do we achieve when we make a use case diagram? This is an important question, that because I already said you कि हम diagram कोई भी फजूल में नहीं बनाते. If we do not make to make a diagram, और वो diagram हमारी information में कोई चीज़ add नहीं करी, then it's useless. Okay, so ये हमारे use case is the first technical representation of a system. Okay, I often say in my classes that even when you go to gather requirements, you can start making use cases even then, because this is a very quick way of, for example, a user is telling you a lot of things, and you actually are only interested in listening to him, how he interacts with the system. So you can start making a rough use case diagram right then and there. Okay, so this is the first technical representation, you can call it the first technical representation, and this gives you an initial description
how the actors or how the other systems or how hardware will be interacting with the product that you are making. And once we have these use case diagrams, we can further elaborate them, and we see different kind of diagrams. For example, the sequence diagrams, जिसके अंदर जो event होता है वो actor ही generate करता है, but then we can see the whole sequence of actions that will take place after that, and how you will jump between different classes or between different objects. Okay? Now this is a detailed elaboration of the same use case that you have already made. लेकिन I mean, this is what software engineering is about, that we basically develop an understanding or increase the understanding of our system through these diagrams. So use case is the first or initial description of user interaction with the system. Okay, ji. Now I've told you that we have actors in a use case. How do we represent an actor? There are different ways of representing an actor in a use case. The simplest one is that you make a rectangle like that, okay, and within the rectangle you write actor, which tells कि इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे that will be an actor. ठीक है? जिस तरह if it's you know, you can have your customers here, या जिस तरह हम अपने HR की एग्जांपल को अक्सर डिस्कस करते होते हैं, तो इसके केस के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं maybe HR manager. That's how you write an actor. They are used. You can have, you know, maybe a system like that. ठीक है? यानी कि if there is a non-human actor, जिस तरह मैंने कहा था कि machine हो सकती है, or there can be another software. So उसके लिए you can use an icon like this one for non-human actors. And one very famous notation for actors in the use case is something like this. Okay, so there are different ways you can represent an actor in a use case diagram. And just to summarize, these are the two notations. Both of them, they are actors, and you can use them alternatively, or whatever you want to use. So on the left you have this, where you basically show an actor with a stick figure, and when we discussed use cases in our previous lectures, we also use this notation, whereas you can also use a rectangle, but you need to write actor here so that it tells you that this is not something else, but this is an actor that you're trying to define. So both of them are correct, and you can use them when you're making a use case diagram. Okay, now what is a use case? ठीक है? A use case is a single unit of meaningful work. ठीक है? यानी कि जब भी आप इस सर्कल एक ओवल शेप बनाते हैं और इसके अंदर कुछ लिखते हैं, तो it should be something meaningful work. और इसकी abstraction it is usually defined at a higher level of abstraction. यानी कि बहुत low level का काम नहीं होगा, ये एक broad सी functionality होगी, लेकिन it should mean something. ठीक है? As it says in the slides, it provides a high level view of behavior observable to someone or something outside the system. ठीक है? For example, जैसा मैंने email की बात की थी, तो user authentication. ठीक है? That is a behavior of the system which is visible to everybody. ठीक है? इसी तरह यहाँ generate reports. ठीक है? Now that is another behavior that is visible to everybody. ठीक है? और how do we represent the use case? We normally make these oval shaped diagrams. So basically a use case is written in a diagram like that. So for example, if I have to say that my system has user authentication, or whenever somebody logs in, so a user authentication is performed, we can write perform authentication through login password. Okay, so basically now this is something meaningful, okay, and this is a single unit of work, so we can write that as a use case. And this is the how we make so we make an oval shape, और इसके अंदर हम जो text लिखते हैं, that becomes a use case. Okay जी. Now there is always these use cases, they have a relationship with the actor. Okay? And we discussed there are basically two kinds of actors in the use cases diagram. There is a primary actor and then there is a secondary actor. Primary actor is the one who basically initiates a use case, and the secondary actor is the one who basically becomes involved in the use case when the use case has been initiated by the primary actor. Okay, and how do we actually connect actors to a use case? Now in this slide there is a small example given. For example, there is a patient and he is trying to make an appointment. So what
व्हाट्स हैपनिंग हियर कि ये आपका एक्टर है, ठीक है, दिस इज द एक्टर, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपकी नोटेशन के अंदर, और हमने दूसरी नोटेशन एक्टर की क्या पढ़ी थी कि वी कैन मेक अ रेक्टेंगल, और इसी को हम इसके अंदर लिख सकते हैं एक्टर, और यहाँ पे हम लिख दें पेशेंट, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। एंड देन दिस एरो, दिस इज द रिलेशनशिप, दिस एरो इज टेलिंग कि दिस एक्टर विल इंटरेक्ट विद माई सिस्टम हाउ। ये एरो की डायरेक्शन भी आपको क्या बता रही है कि हमेशा आपके जब भी आप यूज केस डायग्राम्स बनाएंगे तो जो एक्टर होगा, द एरो हेड विल बी टुवर्ड्स द यूज केस, क्योंकि एक्टर इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम के साथ। सो what function it will perform, or what is the kind of interaction he is going to make an appointment. So this is the use case that we have written in the old chain. Okay, he will make an appointment. Similarly, आप इसी को extend कर सकते हैं. Another functionality that the patient might perform is, for example, make payment. So this is how you relate the actors to the use cases. In the last slide, we saw we discussed an example that how a patient act with the system, and he was trying to make an appointment. So we had a relationship going towards the use case. Another important thing in the use case diagrams is the system boundary. ठीक है, you always need to identify कि आपके सिस्टम की बाउंड्री कहाँ है, और as I said कि हम एक्टर्स कौन होते हैं जो आपकी उस बाउंड्री के बाहर से आपके सिस्टम के साथ एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उस एक्टर की डेफिनेशन में क्या था, इट कैन बी अ यूजर, इट कैन बी अनदर मशीन, और इट कैन बी अनदर सॉफ्टवेयर। सो उस ऑल द यूज केसेस दैट सपोज टू बी इन द बाउंड्री एंड द एक्टर दे आर सपोज टू बी आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है। जिस तरह अगर हम, दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, जिसमें अगर आप इसको कहें कि पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपने एक बनाया हुआ है किसी हॉस्पिटल ने, एंड अ पेशेंट इज ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स विद इन द सिस्टम बाउंड्री। इसके अंदर सिर्फ एक एग्जांपल यूज केस की दी हुई है कि अ पेशेंट इज ट्राइंग टू मेक एन अपॉइंटमेंट, एंड दिस बॉक्स दैट वी हैव मेड, this actually represents the boundary of the system. Okay, now you can have multiple oval shapes here जो कि multiple use cases को identify करेगी, ठीक है। जैसे for example, before making an appointment, a patient might look at doctor's schedule, and once he finds कि कौन से डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट लेनी थी, then he basically requests for an appointment, ठीक है जी। and then so जितने भी use cases होंगे इस पेशेंट के, ठीक है, और मे बी अदर एक्टर्स के भी, जो कि दे वुड बी विद इन दिस सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। और अनदर थिंग दैट आई डिस्कस्ड विद यू इन द अर्लियर लेक्चर ऑन द यूज केस डायग्राम, जब हमने इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था, कि आपके सिस्टम के मल्टीपल यूज केस डायग्राम्स भी बन सकती हैं और पूरे सिस्टम की एक यूज केस डायग्राम भी बन सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू मेक, ठीक है। लेकिन एक चीज, इस स्लाइड का क्या मकसद था कि वी नीड टू हैव अ सिस्टम बाउंड्री एंड ऑल द एक्टर्स दैट आर इंटरेक्टिंग विद अ सिस्टम, दे वुड बी आउटसाइड द बाउंड्री। ओके जी, नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आपके रिलेशनशिप जो हमने पीछे डिस्कस किया, वी डिस्कस अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है कि जिस तरह इसी एग्जांपल को अगर आप देखें तो हमने अभी तक जो रिलेशनशिप पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और हम इसको इस तरह से कर देते हैं कि दिस इज द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अंदर लेट्स से हमारे जो एक्टर है, दैट इज स्टूडेंट। ओके, अब हमने जो भी पिछली स्लाइड्स में रिलेशनशिप देखा है, दैट वाज वेरी सिंपल कि एक स्टूडेंट आता है एंड ही वांट्स टू रजिस्टर फॉर सर्टेन कोर्सेस, ठीक है जी। बट देयर आर अदर रिलेशनशिप्स अलाउड इन अ यूज केस डायग्राम, and one of them is extend, ठीक है। and what does extend tells you? extend आपको ये बताता है कि कब एक दूसरे यूज केस की फंक्शनैलिटी आप अपने यूज केस को कब एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरा काम करने के लिए भी, ठीक है। जिस तरह a relationship from an extending use case to an extended use case that specifies how and when the behavior defined in the extended use case can be inserted into the behavior। okay, एक्सटेंड आपको क्या बताता है कि आपने एक रिलेशनशिप जो आपका एक्सटेंडिंग यूज केस है, जिसमें आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द एक्सटेंडिंग यूज केस इन दिस केस, ठीक है। और आपका जो एक्सटेंडेड यूज केस होगा, ओके,
The other kind of relationship in the use case is the extend relationship. Okay, and what do we mean by extend relationship? जब भी आप किसी use case को कहते हैं कि इसकी functionality को हम extend कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने already जो use case define किया हुआ है उसको हम कहते हैं कि वो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप उसको एक्सटेंड किस तरह करते हैं? इस एक्सटेंशन पॉइंट के थ्रू। जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर द बेस यूज केस इज कि एक स्टूडेंट है, ही कैन गो एंड रजिस्टर, ठीक है। लेकिन हम इस रजिस्ट्रेशन यूज केस की फंक्शनैलिटी को कैसे बढ़ा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जी दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाय दिस यूज केस, ठीक है। और ये दूसरा यूज केस क्या है कि गेट हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई और एक्टर इन्वॉल्व हो, जो कि बेसिकली हो आपका स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो कि बेसिकली ये उसका मेन काम था कि वो लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो बेस यूज केस था हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर भी इसका रोल आ रहा है और हम अपने यूज केस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप एक्सटेंड रिलेशनशिप आपका कब यूज होता है? जब भी आपने एक बेस यूज केस बनाया है एंड the functionality in it can be extended through a use case that is already there. तो आप you can make a extend relationship which basically indicate कि आप किसी दूसरे use case से, यानी कि इस केस के अंदर registration use case is the one that is extended, ठीक है। और ये extend किसने किया? इस use case ने इसको extend किया, okay। So another thing that we need to realize कि आपका use case diagram इस extend के बगैर भी complete हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो हमने इस एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया है, इफ वी जस्ट मेक अ यूज केस जिसमें हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट कम्स इन एंड ही रजिस्टर्स, ठीक है, नाउ दैट इज अ कंप्लीट यूज केस। और अगर आप एक्सटेंड इज जस्ट एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस यूज केस, ठीक है, इट इज सेइंग दैट देयर इज समथिंग एल्स दैट यू कैन परफॉर्म विद द यूज केस। ओके जी, अनदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज द इंक्लूड रिलेशनशिप, ठीक है। Now there is a very important difference between include and extend. A use case diagram is considered complete even if we don't have extend relationship in the diagram, ठीक है। लेकिन include is something if you know कि a use case should include the functionality of another use case, तो use case diagram आपकी complete नहीं होती जब तक कि आप वो include को show नहीं करते। और एक और चीज जो कि different है इन दोनों के अंदर कि ये arrow की जो direction है that is different, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंड के अंदर हम क्या कर रहे थे, अगर आप पिछली स्लाइड को हम यहाँ पे बनाएं तो हमारा जो स्टूडेंट था ही वाज बेसिकली रजिस्टरिंग एंड इसको हमने एक्सटेंड किया था और एरो की डायरेक्शन इस यूज केस की तरफ थी जो कि एग्जिस्टिंग यूज केस था जिसको हम एक्सटेंड कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? गेट हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन इंक्लूड के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ऑलरेडी यूज केस है, ठीक है, जिसको हमने कहा यहाँ पे रीस्टॉक, और ये अगर दो और फंक्शनैलिटीज को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, तो हमारी एरो की डायरेक्शन उनकी तरफ है। और इंक्लूड के रिलेशनशिप के बगैर अगर आपका ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो यूज केस डायग्राम कंप्लीट कंसिडर नहीं की जाती, इट विल बी एन इनकम्प्लीट यूज केस डायग्राम, ठीक है। और फॉर्मली इसकी डिफाइन हम कैसे करते हैं? इंक्लूड रिलेशनशिप डिफाइंस दैट अ यूज केस कंटेन्स द बिहेवियर डिफाइंड इन अनदर यूज केस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस, आपके सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। वेयर एज एक्सटेंशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट सेइंग कि मेरा जो यूज केस है वो ऑलरेडी काम तो कर रहा है लेकिन मैं उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड थ्री काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। वन रिलेशनशिप जिसको हम सॉलिड एरो से शो करते हैं, ठीक है, इट बेसिकली गोज फ्रॉम एक्टर टू द यूज केस, ठीक है। और बाकी जो दो रिलेशनशिप है दे आर बेसिकली बिटवीन डिफरेंट यूज केसेस। एक को हम कहते हैं जो कि बेसिकली एक यूज केस से दूसरे यूज की तरफ आ रहा होता है, ये हमारा एक्सटेंड होता है, ठीक है। और इनमें एक्टर का है, यहाँ पे आपका एक्टर है, यहाँ पे आपका यूज केस है। इस केस के अंदर आपका एक्टर यहाँ से इसके साथ कर रहा है और इस केस के अंदर भी एक्टर इधर आ रहा है, लेकिन इंक्लूड के केस के अंदर एरो की डायरेक्शन दूसरी होती है। और एक और जो मैंने इंपॉर्टेंट फर्क आप लोगों को बताया कि इंक्लूड के बगैर आपका यूज केस कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इफ यू थिंक कि इस यूज केस के अंदर किसी और यूज केस की फंक्शनैलिटी को आपने इंक्लूड करना है तो यू नीड टू मेक दैट, अदरवाइज यूज केस वुड नॉट बी कंप्लीट। ओके जी, जिस तरह ये दो एग्जांपल्स और हैं
कि इफ यू आर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम लेट्स से एन एटीएम मशीन, ठीक है, एंड यू हैव अ विड्रॉल रिक्वेस्ट, ठीक है, तो दिस इज द बेस यूज केस जिसमें एक यूजर आके और एक्टर जो हम कह देते हैं कि कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर इज बेसिकली विड्रॉइंग कैश, ठीक है, व्हेन ही इज विड्रॉइंग कैश, so something that is included when he wants to withdraw cash is card identification, ठीक है, यानी कि you can have a whole complete use case जो कि आप card identification का आपका, but you do not need to make it here again, ठीक है, और आप ये पूरी एक सर्कल के अंदर कार्ड आइडेंटिफिकेशन लिख के वो सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसका कार्ड आइडेंटिफिकेशन कैन बी अ बिग यूज केस ऑन इट्स ऑन, क्योंकि कार्ड आइडेंटिफिकेशन के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। पहले आप कार्ड डालते हैं, ठीक है, अगर आपका कार्ड सही डायरेक्शन में ही नहीं डला हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। देन यू एंटर द पिन नंबर, फिर आप बैंक के साथ जाके ऑथेंटिकेशन कैसी होती है कि यू नीड टू चेक इफ यू हैव एन एटीएम अकाउंट और आप अपने डेबिट कार्ड से कैश निकलवा रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट। फॉर एग्जांपल आप 10,000 निकलवाना चाह रहे हैं, तो यू नीड टू हैव मोर देन 10,000 इन योर अकाउंट, अदरवाइज द ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी कंप्लीट और आपका विड्रॉल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो कार्ड आइडेंटिफिकेशन की पूरी फंक्शनैलिटी आपने क्या हमने विड्रॉ के अंदर इंक्लूड कर दी, ओके। और इसी तरह एक्सटेंड की क्या एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, अब आपका ऑर्डर मॉडिफाई तो हो गया, लेकिन आप इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं कि आप इसका अप्रूवल भी ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग, ठीक है, बट देन आई रियलाइज कि आई नीड टू ऑर्डर समथिंग एल्स, या मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर करनी थी मुझे इसकी क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करनी थी, आई विल चेंज द क्वांटिटी, लेकिन इट विल गो टू अप्रूवल एज वेल, ठीक है। अब मेरा काम मॉडिफाई ऑर्डर का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन द फंक्शनैलिटी इज एक्सटेंडेड through another use case which was get approval. So this is the difference, and I want to emphasize कि include के बगैर your use case is not complete. जिस तरह अगर आप withdrawal देखें तो withdrawal करने के लिए card identification is a must, ठीक है, whereas modify order के अंदर although we have extended the functionality लेकिन customer अपने end पे order को modify कर चुका है, ठीक है। Now this is a very important difference कि without include your use case is not complete, whereas in extending you are just extending the functionality of a base use case. Another information that we can add to a use case in UML is the multiplicity, ठीक है। Multiplicity क्या कहती है कि आप फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कस्टमर, जिस इस यूज केस के अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए दे आर शोइंग द मल्टीप्लिसिटी रिलेशनशिप, और वी कॉल देम मल्टीप्लिसिटी वैल्यूज, ठीक है जी। तो यूज केस द यूजर्स कनेक्टर्स कैन ऑप्शनली हैव द मल्टीप्लिसिटी वैल्यूज एट ईच एंड, ठीक है, एज इन द फॉलोइंग डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये डायग्राम क्या बता रही है कि एक कस्टमर जो है जो कि विड्रॉ करने जा रहा है कैश, नाउ देयर इज वन कस्टमर, और ये 0 और 1 क्या बता रहा है कि एक कस्टमर या तो कैश विड्रॉ कर सकता है या एक विड्रॉल कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो मल्टीपल विड्रॉल्स नहीं कर सकता। वेयर एज जो बैंक है, बैंक के क्योंकि कस्टमर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो बैंक के पास मल्टीपल कस्टमर एट अ टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि अगर आप फॉर एग्जांपल यू हैव एन अकाउंट इन बैंक अल-फलाह, देन देयर आर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हु हैव अकाउंट्स देयर इन दैट बैंक, ठीक है। Now at a certain time there might be thousands of people who are withdrawing cash at the same time, ठीक है, but whereas one customer withdraw cash once, यानी कि एक वक्त में एक ही दफा वो कैश निकलवाएगा, whereas बैंक के लिए there are many people who are trying to withdraw cash at the same time. So आप ये वाली इंफॉर्मेशन भी यूज केस के अंदर ऐड कर सकते हैं, but this is something optional, ठीक है। अब आप देखें कि अगर तो हम बिल्कुल सिंपल सा यूज केस बनाएं जिसके अंदर हमारे एक्टर्स हो और हम उनके सिर्फ नॉर्मल सा एक रिलेशनशिप हो जिसको हमने यूज केस के साथ शो किया हुआ है। Now that is something very simple, जिसको आप कहते हैं कि और उसके अंदर क्या होगा कि आपने सिर्फ बेस फंक्शनैलिटी अपने यूज केसेस के अंदर शो की हुई है, लेकिन बाय एडिंग मोर थिंग्स, जिस तरह हम एक्सटेंड का रिलेशनशिप जब डाल रहे हैं, हम इंक्लूड वाली चीजें शामिल कर रहे हैं, तो वी आर एनोटेटिंग आवर यूज केस, हम अपने यूज केस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। सो अ यूज केस विद ऑल दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू मेक इन अ मच, बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीप्लिसिटी वैल्यूज भी डाल देते हैं तो यू एक्चुअली गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ द बैंक के एक वक्त में, और आपको पता लग जाता है कि यू नो दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन आपको इससे पता लग जाता है कि अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो यू गेट मोर नॉलेज अबाउट द बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ अ सर्टेन कंपनी वेयर यू आर गोइंग टू डिप्लॉय योर प्रोडक्ट इन द एंड। ओके जी, नाउ ये बैंक के एटीएम का जो सब सिस्टम है, this is a small use case of that. We will elaborate on this later on as well.
अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ है कस्टमर एटीएम के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है. वी हैव टू काइंड्स ऑफ, in fact we have three actors here. We have customer, we have ATM technician, or we can call it an operator, and then we have bank. ठीक है, this example is taken from the following website. You can also visit the website and you might find more detailed or more elaborative examples about the bank use cases there. Okay जी, so what's happening here कि कस्टमर एटीएम के ऊपर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट ही वुड डू, ही कैन चेक हिज बैलेंस. ठीक है. द सेकंड थिंग कैन डू, ही कैन डिपॉजिट फंड्स, ही कैन आल्सो विथड्रॉ कैश, he can transfer funds. So these are the 4 functionalities that a customer can perform through the ATM. Okay जी, and all these are linked to the bank as well. ठीक है, क्योंकि जब भी कस्टमर बैलेंस चेक करेगा तो उसकी वैलिडेशन कहाँ से आएगी, बैंक से आएगी. इसी तरह जब भी कस्टमर फंड्स डिपॉजिट करेगा तो दैट विल बी थ्रू बैंक. कैश विड्रॉ करेगा दैट विल बी थ्रू बैंक, और अगर किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है पैसे तो दैट विल बी थ्रू द बैंक. इसी तरह जो एटीएम टेक्नीशियन है, इफ ही इज गोइंग फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, देन अगेन देयर इज अ लिंक विद द बैंक. इसी तरह एटीएम टेक्नीशियन जब रिपेयर कर रहे हैं, देयर इज अ लिंक विद द बैंक. दिस इज अ वेरी सिंपल यूज केस जिसके अंदर वी हैव ओनली द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर्स एंड द बैंक. ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ जो हम ऐड कर सकते हैं और विच जो हमने शायद इस डायग्राम के अंदर नहीं है, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द एरो हेड्स. ठीक है, क्योंकि दिस शोर्स कि ये एक्टर बेसिकली इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन अनदर थिंग इज कि आप जब नॉर्मल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो इवन इफ यू डू नॉट हैव एरो हेड्स बिटवीन द एक्टर्स एंड द यूज केसेस, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि द एक्टर इज बेसिकली इंटरेक्टिंग विद द यूज केसेस, यानी कि जो एरो हेड है वो हमेशा यूज केस की तरफ ही है. सो इट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज एडवाइजेबल दैट यू बेसिकली ऐड द एरो हेड्स एज वेल. ओके जी, नाउ जस्ट टू समराइज द नोटेशन ऑफ अ यूज केस, दिस इज हाउ वी शो एन एक्टर इन अ यूज केस. ठीक है जी, और हमने एक्टर की एक और भी हमने पढ़ी थी कि एक्टर हम और किस तरह कर सकते हैं. वी कैन हैव अ रेक्टेंगल जिसके अंदर हम यहाँ पे एक्टर लिख दें और नीचे कस्टमर लिख दें. तो दिस इज ऑल्सो how we can show an actor in our use case. और हमने कहा था कि जो नॉन ह्यूमन एक्टर होगा, ठीक है, उसके लिए हम इस तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज एनी अदर सिंबल, जिस तरह बैंक के लिए इन द लास्ट स्लाइड वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ बैंक. ठीक है, नाउ दैट वाज एन एक्टर बट इट वाज अ नॉन ह्यूमन एक्टर, सो वी हैड अ डिफरेंट आइकॉन फॉर दैट और डिफरेंट सिंबल फॉर दैट. देन वी सॉ कि हम अपने रिलेशनशिप को एक्सटेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, और एक्सटेंड करने का हमने आपको क्या कहा था कि देयर इज नॉर्मली एन एक्सटेंशन पॉइंट इन अ यूज केस. ठीक है, और जो बेसिकली यूज केस जिसकी फंक्शनलिटी आप अपने यूज केस के अंदर शामिल कर रहे होते हैं या जो आपकी यूज केस को एक्सटेंड कर रहा होता है जो यूज केस, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूज केस. ठीक है, और बेस यूज केस की क्योंकि फंक्शनलिटी बढ़ रही होती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड. ठीक है, यानी कि जो कर रहा होता है वो एक्सटेंडिंग एंड द वन व्हिच इज हुज फंक्शनलिटी इज इंक्रीज, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूज केस. ठीक है, और नॉर्मली देयर इज एन एक्सटेंशन पॉइंट जिससे आप, और एरो की हेड की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सटेंडेड यूज केस की तरफ होती है, यानी कि फ्रॉम एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंडेड. ओके जी, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट द कंडीशन कि किस कंडीशन के अंदर ये वाला यूज केस आपके बेसिकली एक्सटेंड होगा या किस कंडीशन के अंदर ये एक्सटेंशन का रिलेशनशिप इन्वोक होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि रजिस्ट्रेशन के अंदर वी कैन हैव मोर हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन. सो वी कैन से कि उसके अंदर हमारी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हम इसी तरह की कंडीशन उसमें बनाने की कोशिश करें कि हमारा एक्टर है, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू रजिस्टर. ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और हैव हेल्प का बना सकते हैं, और ये एक्सटेंशन के ऊपर हम कंडीशन क्या डाल सकते हैं कि इफ स्टूडेंट इज न्यू. ठीक है, वी कैन ऐड अ कंडीशन लाइक दैट कि अगर स्टूडेंट पहले सेमेस्टर के हैं तो उनको बेसिकली हेल्प भी चाहिए होगी. ठीक है, और देयर शुड बी मोर इन्फॉर्मेशन फॉर देम. ठीक है, इफ दीज आर फ्रेश स्टूडेंट्स. ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो ऐड कंडीशंस टू एक्सटेंशन कि किन केसेस के अंदर ये वाला यूज केस की फंक्शनलिटी को हमें एक्सटेंड कर. ओके जी, सो दीज आर द नोटेशंस ऑफ यूज केसेस. फ्यू मोर इंक्लूड की नोटेशन भी हम एक दफा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमारा इंक्लूडिंग यूज केस ये है और इंक्लूडेड. अब देखें एरो की डायरेक्शन फिर से आपको क्या बता रही है कि ये हमारा मेन यूज केस था या बेस यूज केस था, लेकिन इंक्लूड के अंदर मैंने आपको कहा था एरो की डायरेक्शन हमेशा इंक्लूडेड यूज केस की जिसकी फंक्शनलिटी को हम शामिल कर रहे हैं. ठीक है,
और इंक्लूड के बगैर हमारा काम मुकम्मल नहीं होता। जिस तरह विड्रॉ के अंदर कार्ड आइडेंटिफिकेशन हर दफ़ा होगी, ठीक है। आप ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप कैश विड्रॉ करें और कार्ड आइडेंटिफिकेशन ना हो, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ एक्सटेंड, अगर एक्सपीरियंस या पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल है, तो दे माइट नॉट नीड हेल्प because they would be using the registration system for 2-3 years, so they would not need that help on registration. Similarly, finally use cases की क्या notation होती है? Use cases की notation क्या है? You have a oval shape जिसके अंदर आप use case लिख देते हैं. Secondly, if you need extension points, तो you can have that or separated by a line in this oval shape, जो कि basically show करता है कि यहाँ पे आपकी जो extending use case है वो यहाँ पे आके आपके use case को extend करेगा, ठीक है। तो these are the notations that we use when we make use case diagrams. Okay जी, now this is again an example जिसके अंदर I've just summarized it again कि you have basically this is the telephone catalog का use case बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर these are all जितनी भी ये oval shape हैं ये सारी हमारी use cases हैं। This is a use case, 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 ठीक है। कस्टमर क्या क्या कर सकता है? कस्टमर can check status, he can place order, he can fill orders, he can establish credit, ठीक है। अब जो check status और place order के अंदर आपके दूसरे कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? आपके सेल्स पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट सम न्यू फंक्शनैलिटी, जिस तरह आप PT सेल का अगर इमेजिन करें कि यू आर यूजिंग देयर फोन लाइंस लेकिन यू वांट देयर DSL एज वेल, तो वंस यू कॉल द PT सेल सिस्टम या आप उसके ऑनलाइन जाके एक्सेस करते हैं एंड यू प्लेस अ न्यू ऑर्डर फॉर द DSL एज वेल, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर अ सेल्स पर्सन इन असाइंड, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि ही वुड कम टू योर होम एंड ही विल बेसिकली इंस्टॉल द DSL और व्हाटएवर, ही विल गिव यू सर्टेन फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ प्राइमरी एक्टर एंड दिस इज द सेकेंडरी एक्टर, क्योंकि सेल्स पर्सन का काम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि कस्टमर उससे कुछ नहीं चाहेगा, ठीक है। सो द प्राइमरी एक्टर इन दिस केस इज द कस्टमर। ओके जी, नाउ another is the fill orders जो कि basically shipping clerk कर रहा है, and then a customer can establish credit which is basically supervised by a supervisor, ठीक है। and an important thing here is that let's say this is the complete system, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि there are multiple use cases which are basically included in this whole diagram, ठीक है। यानी कि जो शिपिंग क्लर्क वाली एग्जांपल थी उसका हम अलहदा से भी यूज केस बना सकते हैं, जिस तरह वी कैन से कि दिस इज आवर एक्टर जो कि हमारा है जी शिपिंग क्लर्क, ठीक है। और इसका काम क्या है सिस्टम के साथ? फिल ऑर्डर्स, ठीक है। तो वी कैन मेक सेपरेट डायग्राम्स एज वेल एंड वी कैन मेक वन बिग डायग्राम, ठीक है। सो द की हियर इज दैट इफ योर सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स and by including all the use cases in one diagram, you're basically confusing yourself and the people who will basically look at this use case diagram. So it's better that you separate it, but if it's possible, if the system is not that big on scale, then maybe you can make one diagram and show all the user interaction in that one big diagram. Okay जी, so again we are summarizing कि आपकी use case की क्या क्या notation होती है? We have this oval shape, an ellipse represents a single use case. The name of the use case is written inside the ellipse, ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। Actor represents every element which interact with the system. It may be a user, another system, or an hardware machine which is interacting from outside the system boundary. जो हमारे ऑर्डिनरी रिलेशनशिप होते हैं उसके अंदर आपको एरोहेड्स बनाने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसके अंदर यू कैन रिप्रेजेंट देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपके क्या रिलेशनशिप करते हैं? जो एक एक्टर का ऑर्डिनरी या नॉर्मल रिलेशनशिप है यूज केस के साथ। सिस्टम बाउंड्री क्या है? अ स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, इनसाइड द सिस्टम आर द यूज केसेस, और उस बाउंड्री के बाहर क्या होते हैं? आपके एक्टर्स जो यूज केसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एज आई टोल्ड यू कि अ यूज केस इज अकम्पनीड विद द टेक्स्ट, ठीक है। अब वो जो टेक्स्ट होता है देयर इज अ सर्टेन फॉर्मेट जिसके ऊपर हम अपने यूज केस के टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे जब भी हम यूज केस डिफाइन करते हैं तो वन थिंग दैट वी डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, कि एवरी डायग्राम दैट यू मेक यू शुड असाइन अ यूनिक आइडेंटिफायर टू दैट डायग्राम, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यू हैव 10 यूज केसेस, नाउ यू कैन राइट द नेम ऑफ ऑल द यूज केसेस। फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट 5 या 6 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर बार बार एक यूज केस को आप मेंशन करना चाह रहे हैं कि ये इस रिक्वायरमेंट से ये वाला यूज केस इफेक्ट हो रहा है, इस रिक्वायरमेंट से भी ये वाला यूज केस इफेक्ट हो रहा है। नाउ इफ वी हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ यूज केस देन वी डू नॉट नीड टू राइट दैट टेक्स्ट अगेन एंड अगेन। वी कैन जस्ट से कि फॉर एग्जांपल अ यूज केस इज UC1, ठीक है। नॉर्मली बट द फर्स्ट थिंग दैट अ यूज केस शुड हैव, इट शुड हैव अ नेम,
ठीक है। एवरी यूज केस शुड हैव अ नेम, ठीक है, और हम इस फील्ड के अंदर क्या लिखते हैं, यूज केस का नाम लिखते हैं। देन वी शुड हैव अ फील्ड जिसके अंदर हम यूज केस की आईडी देते हैं, ठीक है। यूज केस की आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी के अंदर फॉर एग्जांपल या कभी आपने कभी भी रेफर करना है तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग द होल नेम यू कैन जस्ट से UC1, ठीक है। द सेकंड थिंग दैट इज अ मस्ट इन द यूज केस टेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ एक्टर्स, ठीक है, कि आपके यूज केस के अंदर किस किस तरह के एक्टर्स हैं, कौन कौन एक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगेन अगर आप इसको ज्यादा एलेबोरेट करें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हु आर द प्राइमरी एक्टर्स एंड हु आर द सेकेंडरी एक्टर्स इन द यूज केस। देन यू हैव डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होती है, वही चीज जो आपने शायद डायग्रामेटिकली बताई है, इट्स अ वर्बल डिस्क्रिप्शन जो आप डायग्राम में बता चुके हैं, ठीक है, यानी कि आप उसी चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और रेफरेंसेस के अंदर क्या होता है, रेफरेंसेस के अंदर आप जो भी चीजें इस यूज केस के साथ लिंक हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस के ऊपर आपने यूज केस बनाया तो यू कैन इंक्लूड द रेफरेंस हियर, कि फॉर एग्जांपल SRS डॉक्यूमेंट पेज 13 व्हाटएवर, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस यूज केस के अंदर है, तो यू कैन हैव रेफरेंसेस इन द यूज केस टेक्स्ट एज वेल। अच्छा जी, टिपिकल कोर्स ऑफ इवेंट्स आपको क्या बताता है, ये आपके यूज केस की जो डिस्क्रिप्शन होती है दैट इज वेरी ब्रीफली आपने बताया होता है कि यूज केस क्या करेगा, लेकिन जो टिपिकल कोर्स ऑफ इवेंट्स है वो बताते हैं कि आपका यूज केस का एक्टर इसको इन्वोक कैसे करेगा, उसके बाद क्या एक्शन होगा। तो इट्स बेसिकली अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। एंड एज इट इज सेइंग इन द स्लाइड कि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द यूज केस डिस्क्रिप्शन, इट्स पर्पस इज टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द यूज केसेस एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो हमने जब मैंने यूज केस और एक्टिविटी डायग्राम्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराई थी तो वी आल्सो डिस्कस्ड अल्टरनेट कोर्स, ठीक है। Now this is something very important कि alternate course क्या होता है कि you have a use case, लेकिन if you are planning to change or perform या actor के पास एक decision point आ जाता है where he is going to make another decision, ठीक है। तो आप for example आपके use case के अंदर अगर आपने login password डाला, if the password is correct then the user can perform certain things. But let's say he forgets the password, then there is an alternate set of actions. ठीक है, for example he needs to enter the password again. So alternate course को आप you can also write कि अगर ये ना हुआ तो हमारे use case के अंदर ये हो सकता है. Then there are two kinds of conditions that you can include in the use case. For example the preconditions and the post conditions. ठीक है, जिस तरह अगर यूजर ने कैश विड्रॉल करना है, आप कैश विड्रॉल का यूज केस बना रहे हैं, तो one of the preconditions for cash withdrawal is that the user has already entered the PIN or he has already entered the correct PIN. ठीक है, यहाँ और इस प्री कंडीशन के अंदर आप वो यूज केसेस भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आपने पिन ऑथेंटिकेशन का एक अलग से यूज केस बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि पिन ऑथेंटिकेशन यूज केस, और यू कैन राइट द यूज केस आईडी। फॉर एग्जांपल अगर आपने पिन ऑथेंटिकेशन को यूज केस UC1 असाइन किया हुआ है तो आप कहेंगे UC1 इसकी प्री कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह पोस्ट कंडीशंस में क्या होता है, पोस्ट कंडीशंस के अंदर वो सारे आप इवेंट लिख देते हैं जो कि इस यूज केस को करने के बाद होंगे, ठीक है, विच मे इन्वोक अदर यूज केसेस, ठीक है। जिस तरह आपने कैश विड्रॉल किया तो आपका बैलेंस एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है, और आपके इट शुड नॉट ओनली इंक्लूड शो इट इन योर बैलेंस, आपकी रिसीट भी जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश विड्रॉल हुआ है तो कैश विड्रॉल के बाद आपको ऑप्शन आनी चाहिए कि आपने रिसीट लेनी है कि नहीं लेनी है ना। सो ऑल द थिंग्स दैट माइट ऑकर आफ्टर अ बेस यूज केस आप उसके बाद पोस्ट कंडीशन के अंदर वो भी लिख देते हैं। एंड assumptions और अदर रिमार्क्स कि आपका फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी assumptions अबाउट whatever use case you are performing, so you can also write them here, ठीक है। And these are the basic things that are included whenever you write the use case text, यानी कि use case name, actors, description, references, typical course of events, alternate course, precondition, postcondition, and the assumptions. Okay जी, now we will look at two examples, जिसमें सबसे पहली है बैंक ATM की, and the second one would be about student teacher information system. Okay ji, now when a user goes to a bank then he or she can perform multiple functions, ठीक है। first of all let's try to identify कि क्या क्या use case बन सकते हैं, ठीक है। number one would be system startup use case, ठीक है, यानी कि किसी ने तो जाके एटीएम मशीन को ऑन करना है, ठीक है, तो देयर शुड बी अ यूज केस फॉर दैट, ठीक है। फिर आपका इसी तरह सिस्टम शटडाउन का यूज केस भी बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यू विल हैव
सेशन यूज केस, क्योंकि जब भी कोई यूजर अपना कार्ड डालता है और अपनी पिन डालता है तो अ न्यू सेशन ओपन्स अप विद द बैंक, ठीक है। और वो सेशन उस वक्त तक ओपन रहता है जब तक कि यूजर अपनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे वो अपना कार्ड निकाल लेता है तो सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यू नीड अ सेशन यूज केस, ठीक है जी। इसके बाद यू नीड ट्रांजैक्शन यूज केस, ठीक है, क्योंकि व्हेनेवर अ यूजर स्टार्ट्स अ सेशन तो ही और शी बेसिकली वांट्स टू परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो एक आपका बेस ट्रांजैक्शन यूज केस बन गया, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस कितनी तरह की हो सकती हैं, ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी तरह की हो सकती हैं। आपका यूजर किस किस तरह की ट्रांजैक्शन कर सकता है, ही कैन विदड्रॉल की ट्रांजैक्शन हो सकती है, या आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है बैलेंस इंक्वायरी की ट्रांजैक्शन हो सकती है, या आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है फंड ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन हो सकती है। सो ऑल द पॉसिबल ट्रांजैक्शंस दैट अ यूजर कैन परफॉर्म, वो इस ट्रांजैक्शन के अंदर दीज आर आल्सो यूज केसेस, ठीक है। ओके जी, नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग कि यूजर आपके सिस्टम से क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड हैव डन एक्चुअली बिफोर व्हेन वी स्टार्टेड दिस एग्जांपल इज टू आइडेंटिफाई द एक्टर्स, ठीक है। अब इस हमारे केस के अंदर एक्टर्स कौन से हैं इस बैंक एटीएम के केस के अंदर। द फर्स्ट एक्टर इज द कस्टमर, दूसरा एक्टर कौन है, ऑपरेटर, जो कि बेसिकली मेंटेनेंस कर रहा है, आपके सिस्टम को शट डाउन कर रहा है, आपके सिस्टम को स्टार्ट कर रहा है। और जो आपका तीसरा एक्टर है, जो कि हम यहां पे अभी ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी बैंक, ठीक है। तो दीज आर द थ्री एक्टर्स। और अगर आप एक्टर्स पहले आइडेंटिफाई कर ले, फिर आपके लिए यूज केस आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। जिस तरह जब आपने ऑपरेटर डिफाइन किया तो ऑपरेटर डिफाइन करके आपको पता लग गया अच्छा यार ये वाला बंदा ना ये दो काम करेगा। इसलिए जब आपने कस्टमर कहा तो आपने कहा जी कस्टमर ये वाली सारी ट्रांजैक्शंस करेगा, लेकिन जब वो ये ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा तो बैंक को भी पता होना चाहिए इनका, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ यूज केस डायग्राम इज टू आइडेंटिफाई द एक्टर्स, और एक्टर्स की बेस के ऊपर फंक्शनैलिटी या यूज केसेस को आइडेंटिफाई करना इट इज अ लॉट ईजियर। ओके जी, लेट्स सी कि ये वाली हमारी यूज केस की डायग्राम कैसे बनती है। नाउ जो सबसे पहले हम बनाते हैं दैट इज फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर की यूज केस वुड बी वेरी सिंपल। हम कहते हैं जी हम एक ही यूज केस बनाएंगे, तो वी मेक अ बिग सिस्टम बाउंड्री। ये हमारी सिस्टम बाउंड्री हो गई, ये जो हमने बॉक्स बनाया ये क्या है, दिस इज द बाउंड्री। और इस बाउंड्री के अंदर हम वो भी लिख देते हैं कि बैंक एटीएम के, ये हमारा जो सब्जेक्ट है दिस इज बैंक एटीएम, ये उसकी पूरी बाउंड्री है। अच्छा जी, ऑपरेटर क्या क्या काम कर सकते हैं, ऑपरेटर दो काम कर सकता है। पहला काम क्या करेगा ऑपरेटर, सिस्टम स्टार्टअप, और दूसरा है सिस्टम शटडाउन। हमने ओवल शेप बना दी, हमने बता दिया कि जो हमारा ऑपरेटर है वो ये दो काम कर रहा है। अच्छा जी, दूसरा हमारा एक्टर कौन है, द सेकंड एक्टर इज द कस्टमर, ठीक है जी। अच्छा जी, कस्टमर ने क्या करना है, कस्टमर ने सबसे जो मेन काम कस्टमर ने स्टार्ट कर दिया अपना सेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग कस्टमर वुड डू व्हेनेवर ही लॉग्स इन, ही विल बेसिकली हैव अ सेशन, ठीक है। जब आपने सेशन स्टार्ट कर दिया तो सेशन विल ऑलवेज इंक्लूड वन ऑफ दीज, ठीक है। सेशन विल इंक्लूड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन कौन सी होंगी आपके सेशन के अंदर, इट कैन हैव विड्रॉल की ट्रांजैक्शन हो सकती है, आपके फंड ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन हो सकती है, ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शन की फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली एक्सटेंड हो रही है, आइदर यू विल विड्रॉ और यू विल डू फंड ट्रांसफर और यू विल डू बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक इज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, ठीक है। Now this is a very simple example. लेकिन in this example you can see all the things that we have discussed, ठीक है। You can see the system boundary, ठीक है। सिस्टम बाउंड्री के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने सबसे पहला काम क्या किया है, हमने लिख दिया कि जी ये बैंक एटीएम का यूज केस हम बना रहे हैं, यूज केस डायग्राम, ठीक है। एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विद ऑपरेटर,
जो कि हमारा ये ऑपरेटर एक्टर है, ठीक है। ऑपरेटर से वी हैव टू थिंग्स दैट ऑपरेटर कैन परफॉर्म, ही कैन डू सिस्टम स्टार्टअप, ही कैन डू सिस्टम शटडाउन। इसी तरह कस्टमर, द मेन थिंग दैट द कस्टमर वुड डू, ही विल स्टार्ट अ सेशन विद द बैंक, ठीक है। वंस द कस्टमर हैज स्टार्टेड अ सेशन, तो ही विल परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो अ ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ दिस सेशन। लेकिन जो ट्रांजैक्शन है, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन दैट अ कस्टमर कैन डू, ठीक है। अ कस्टमर कैन आइदर विथड्रॉ कैश, और ही कैन डू बैलेंस इंक्वायरी, और ही कैन डू फंड ट्रांसफर, ही कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन वेन एवर अ ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म, तो बैंक को भी पता लगना है, ठीक है। और इस बैंक के एटीएम के एग्जाम्पल के केस के अंदर ये दो हमारे प्राइमरी एक्टर्स हैं, ऑपरेटर एंड कस्टमर, दे आर द प्राइमरी एक्टर्स। और इसके अंदर बैंक को हम क्योंकि इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस यूज केस की बेस के ऊपर बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो ही इज अ सेकेंडरी एक्टर, ठीक है। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ बैंक एटीएम। अच्छा जी, नेक्स्ट वी विल लुक एट यूज केस डायग्राम ऑफ अ स्टूडेंट टीचर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब अगर आप स्टूडेंट टीचर इंफॉर्मेशन सिस्टम देखें, और वी आर इमेजिनिंग कि इसके अंदर व्हाट वी आर हैंडलिंग इज कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट्स की कोर्स रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और टीचर क्या क्या करेंगे। टीचर विल बेसिकली मार्क द अटेंडेंस, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और दे वुड बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो हमारे इसके अगर हम एक्टर्स लिखने की कोशिश करें, तो हमारे एक्टर्स कौन कौन है, वी माइट हैव, सबसे पहले तो स्टूडेंट टीचर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो हमें ये तो पता लग गया कि वन एक्टर वुड बी स्टूडेंट, अनदर एक्टर वुड बी टीचर। इसी तरह हमारा एक एक्टर होगा मे बी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। तो वी हैव 3 पॉसिबल एक्टर्स। अच्छा, अब अगर इनकी बेसिस के ऊपर हम इन तीनों की फंक्शनैलिटीज डिफाइन करने की कोशिश करें, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है, ही विल बेसिकली allocate courses to teachers, let's say. Second thing क्या करेगा, provide help on registration, ठीक है। इसी तरह आपके जो टीचर हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, टीचर and mark attendance, second काम enter marks, edit marks, ठीक है। और टीचर आपके क्या कर सकते हैं, they can basically view these things, view marks or attendance, ठीक है। और what are the things that the student can do, स्टूडेंट आपका क्या क्या कर सकता है, he or she can register, ठीक है, unregister, ठीक है, और view marks / attendance, ठीक है। तो these are some of the basic things जो आप किसी भी एग्जाम्पल को अगर आप देखें, किसी भी प्रोडक्ट को आप पकड़ें, तो आप उसके एक्टर्स आइडेंटिफाई करें, और द सेकंड एक्सरसाइज वुड बी कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये एक्टर किस किस तरह से हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। Now let's try to make a quick use case diagram of the system. Okay जी, सबसे पहले what we should do is we should make a big system boundary. In fact, what we will do is in this case हम क्या करते हैं कि we'll try to make separate use case diagrams, ठीक है। जिस तरह सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर रहा है। अच्छा जी, अब एडमिनिस्ट्रेटर की जो मेन फंक्शनैलिटी जो वो परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ बेसिकली assigning courses to faculty, ठीक है। दूसरा काम ये क्या कर रहा है कि approves registration, ठीक है। Then let's make the students use case, ठीक है। अब जो स्टूडेंट का यूज केस बनेगा वो हम कैसा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट सबसे पहले क्या कर सकता है, स्टूडेंट कैन रजिस्टर, और इसी को हम जिस तरह हमने वो एग्जांपल में भी देखा था, हम एक्सटेंड करते हैं। हम कहते हैं कि जी ये एक्सटेंड कैसे होगा, हेल्प, और हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि इसके अंदर इंक्लूडेड कौन सा यूज केस है, ये वाला हमारा रिलेशनशिप हो गया एक्सटेंड का, और यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप हो गया ये हो गया इंक्लूड का। इंक्लूड के अंदर हम कह रहे हैं कि कौन सा यूज केस इंक्लूड है,
अप्रूवल यूज केस, यानी कि ये आपको ये काम भी कौन कर रहा है, एडमिन कर रहा है, एडमिन अप्रूव करेगा आपके किसी भी रजिस्ट्रेशन को। अच्छा, दूसरा काम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन व्यू देयर मार्क्स एंड स्टूडेंट्स कैन व्यू देयर अटेंडेंस। ठीक है जी। इसी तरह हम टीचर की भी यूज केस बना सकते हैं कि हम टीचर के अंदर क्या करेंगे कि विल हैव टीचर, और टीचर क्या कर सकते हैं, ही कैन एंटर मार्क्स, ही कैन व्यू एट द एलोकेटेड कोर्सेज, और वो मार्क्स एंटर कर सकते हैं, अटेंडेंस एंटर कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी विल मेक अ यूज केस डायग्राम। सो वी हैव सीन 2 examples, and I will advise that look at any system or any software that you use in your daily life and try to analyze के इस सॉफ्टवेयर से आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करती है, वो कैसे करती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्टर्स एंड देन ट्राई टू एनालाइज कि आप या जो भी डिवाइस है या कोई अदर सिस्टम है इसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, एंड ट्राई एंड मेक अ यूज केस डायग्राम। ठीक है जी। Okay, and let's have a summary of what we have covered in today's lecture. Okay, we defined और we formally defined कि use case diagram क्या होती है। ठीक है, use case diagram आपके सिस्टम की पहली शायद टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होती है। It gives you a overview और a very brief description के यूजर्स या एक्टर्स आपके सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, और देन वी सॉ कि हमारे एक्टर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, an actor is defined as anybody, an actor is defined as a human or a machine or another system that will interact with the system or the product that we are making from outside। ठीक है, यानी कि हमारे सिस्टम की बाउंड्री अगर ये है तो जो भी चीज इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है बाहर से, ठीक है, दैट इज एन एक्टर। ठीक है, ये चीजें क्या हो सकती है, इट कैन बी अ ह्यूमन यूजर, इट कैन बी अनदर सिस्टम, ठीक है, और इट कैन बी हार्डवेयर। ठीक है, सो द एक्टर कैन बी एनी ऑफ दीज थ्री। ठीक, देन वी सॉ द यूएमएल नोटेशंस दैट आर यूज्ड इन अ यूज केस डायग्राम। ठीक है, जिस तरह हमने देखा कि हमारे एक्टर को बनाने का क्या तरीका है, एक्टर्स वी नॉर्मली शो लाइक दैट, या हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं, उसके अंदर हम लिख देते हैं एक्टर। सो दिस इज हाउ वी शो एन एक्टर इन अ यूज केस डायग्राम। देन वी सॉ कि हमारे यूज केस की नोटेशन क्या है कि यूज केस वी ऑलवेज राइट इन एन एलिप्स। ठीक है, हम एक एलिप्स पर आते हैं और उसके अंदर हम यूज केस का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यूज केस नेम इज रिटन हियर। ओके जी, एंड देन वी सॉ कि जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है बिटवीन एन एक्टर एंड अ यूज केस, दैट इज शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसका मतलब यही होता है कि इसके अंदर हमें एरो हेड बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका मकसद यही है कि एक्टर आपका यूज केस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। देन वी सॉ कि देयर आर 2 other kinds of relationships that are part of or that can be included in a use case diagram, जो कि 2 तरह के थे। एक तो था कि एक्सटेंड का। ठीक है, जिस तरह एक्सटेंड का क्या मतलब है कि दिस इज द एक्सटेंडिंग यूज केस, जिसकी फंक्शनैलिटी को आप यूज करते हुए अपने इस यूज केस को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो एरो की डायरेक्शन है वो हमेशा जिस यूज केस की फंक्शनैलिटी आप इसमें डाल रहे हैं तो उससे एरो हेड आएगा आपके बेस यूज केस की तरफ, जिसकी हमने एग्जांपल देखी थी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर कि इफ अ स्टूडेंट इज रजिस्टरिंग, तो रजिस्टरिंग अगर बेस यूज केस है तो अगर उसको हेल्प चाहिए तो द हेल्प यूज केस इज बेसिकली एक्सटेंडिंग द रजिस्ट्रेशन यूज केस। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी तरह की हमने देखी थी वो था इंक्लूड। तो इंक्लूड के अंदर क्या हो रहा है कि एरो की डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ठीक है, और इंक्लूड क्या कहता है कि इस यूज केस के अंदर हम दूसरे यूज केस की फंक्शनैलिटी को इंक्लूड कर रहे हैं, और वो क्या था, जिस तरह रजिस्ट्रेशन के केस के अंदर अप्रूवल। ठीक है, तो दीज आर दी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी और अ पार्ट ऑफ दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ अ यूज केस डायग्राम। ठीक है, एंड देन वी ऑल्सो looked कि यूज केस डायग्राम तो एक चीज है, बट व्हेनेवर यू हैव अ यूज केस डायग्राम यू कैन ऑल्सो हैव यूज केस टेक्स्ट। ठीक है, और यूज केस टेक्स्ट के अंदर आप क्या लिखते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू राइट व्हेन वी आर राइटिंग अ यूज केस। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, वी हैव यूज केस नेम, we have the list of actors, we have a brief description about the use case, then we have series of events। ठीक है, यहाँ आपके यूज केस के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, और हम फिर ऑल्टरनेटिव कोर्स पे लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिसीजन पॉइंट इन योर यूज केस एंड द एक्शंस और द ट्रांजैक्शंस, और जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करने थे वो उसके बाद चेंज हो जाएंगे, तो वी राइट द अल्टरनेट कोर्स। ठीक है, और नॉर्मली अगर हमने इवेंट्स को नंबर्ड फॉर्म में लिखा है 1 2 3 4 5 और देयर इज एन अल्टरनेटिव 4, तो अल्टरनेटिव के अंदर हम 4 से आगे लिखेंगे कि 4 के बाद ये भी हो सकता है। इसी तरह हम अपने यूज केस के अंदर प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशंस भी लिखते हैं, एंड इफ वी हैव एनी अजम्पशंस
we also write that in a use case. But something that I also told you that we should write in a use case is a unique use case identifier. हमें हर use case को एक unique ID assign कर देते हैं. It's a small abbreviation which makes it easy for us to refer to that use case again and again. और एक और चीज़ use case text में होती है, these are called references. References की field के अंदर हम requirement, for example SRS document के कुछ certain pages हैं जिससे हमने ये use case बनाया है या जिसके अंदर इस use case के बारे में information है, तो हम उसको refer भी कर सकते हैं. We can say कि जी look at this and this page in the SRS document जिससे हम refer कर रहे हैं. And finally we saw two examples जिसके अंदर हमने बैंक ATM की example की and we did an example on student teacher information system. So that is it for today's lecture. I hope you guys have understood what are the things that are included in a use case diagram and you understood what are the different kinds of relationships in a use case diagram. Okay? So in the next lecture we will start with we will do more. We will basically be covering some more in the next lecture. In the next lecture we will be covering some more diagrams and we'll see the UML notation. So we'll be continuing with this series where we will basically go through each one of these diagrams. So that's it on the use case diagrams. Inshallah, until next lecture. Assalamu alaikum.